નવી દિલ્હીમાં સ્થિત ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદ ખાતે આરોગ્ય ક્ષેત્ર સાથે સંબંધિત અનેક પ્રોજેક્ટ્સનું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યું. ધન્વંતરી જયંતિ અને 9મા આયુર્વેદ દિવસના અવસરે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ નવી દિલ્હીમાં સ્થિત ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદ ખાતે આરોગ્ય ક્ષેત્ર સાથે સંબંધિત અનેક પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યો, જેની કુલ કિંમત ₹850 કરોડ છે. આ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આયુર્વેદના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો અને આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં આયુર્વેદના યોગદાનને વધારવા માટે સરકારની પ્રતિબદ્ધતાને પુનરાવર્તિત કરી. AIIAના ફેઝ 2ના ઉદ્ઘાટન સાથે પંચકર્મ હોસ્પિટલ, આયુર્વેદિક ફાર્મસી, રમતગમત દવા એકમ, કેન્દ્રીય પુસ્તકાલય, IT અને સ્ટાર્ટઅપ્સ, ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર અને 500 બેઠકોનું ઓડિટોરિયમનો સમાવેશ થાય છે. પ્રધાનમંત્રીએ 4 આયુષ સેન્ટર્સ ઓફ એક્સલન્સની પણ શરૂઆત કરી, જેમાં ભારતીય વિજ્ઞાન સંસ્થાન બેંગલુરુમાં ડાયાબિટીસ અને મેટાબોલિક ડિસઓર્ડર્સ માટેનું સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ, IIT દિલ્હી ખાતે ટકાઉ આયુષ માટેનું સેન્ટર, સેન્ટ્રલ ડ્રગ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ લખનૌમાં આયુર્વેદ માટેનું સેન્ટર અને JNU નવી દિલ્હીમાં આયુર્વેદ અને સિસ્ટમ્સ મેડિસિન માટેનું સેન્ટરનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત પ્રધાનમંત્રીએ ઓડિશાના ખોરધા અને છત્તીસગઢના રાયપુરમાં યોગ અને પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા માટે 2 કેન્દ્રીય સંશોધન સંસ્થાનોના શિલાન્યાસ પણ કર્યા. આ પ્રોજેક્ટ્સ આયુર્વેદને મુખ્ય ધારા આરોગ્ય સેવાઓમાં લાવવાના પ્રયાસોનો ભાગ છે અને સંશોધન અને ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસને મજબૂત બનાવશે. આ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે આ પ્રોજેક્ટ્સ આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં નવીનતાઓ અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ વધારશે અને દેશભરમાં ગુણવત્તાયુક્ત આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડવામાં મદદરૂપ થશે. આ પ્રોજેક્ટ્સના ઉદ્ઘાટન સાથે આયુર્વેદ અને આધુનિક ચિકિત્સા વચ્ચેના સંકલનને મજબૂત બનાવવામાં આવશે અને આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં નવી તકો ઊભી થશે. આ પ્રોજેક્ટ્સના ઉદ્દેશ્ય આરોગ્ય સેવાઓને વધુ સુલભ અને અસરકારક બનાવવાનો છે અને આયુર્વેદના પ્રાચીન જ્ઞાનને આધુનિક ચિકિત્સા સાથે સંકલિત કરીને આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં નવી ઊંચાઈઓ હાંસલ કરવી છે. આ પ્રોજેક્ટ્સના ઉદ્ઘાટન સાથે પ્રધાનમંત્રીએ આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં આયુર્વેદના યોગદાનને વધારવા માટે સરકારની પ્રતિબદ્ધતાને પુનરાવર્તિત કરી અને દેશભરમાં ગુણવત્તાયુક્ત આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડવામાં મદદરૂપ થવા માટે આ પ્રોજેક્ટ્સના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. प्रयास जो हैं वो सराहनीय प्रयास हैं. आप देख सकते हैं उनके साथ JP नड्डा जी और तमाम गणमान्य हस्तियां उनके साथ मौजूद हैं. इस समय आयुर्वेद दिवस पर विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ होगा. आयुर्वेद संस्थान में प्रदर्शनी का इस समय वो अवलोकन कर रहे हैं. जो ढांचा है, किस प्रकार स्वास्थ्य ढांचा और ज़्यादा बेहतर हो, उस दिशा में ये प्रदर्शनी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है. प्रधानमंत्री भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी इस अवसर पर उद्घाटन करेंगे और इस चरण में एक पंचकर्म अस्पताल, औषधि निर्माण के लिए एक आयुर्वेदिक जो फार्मेसी है वो, खेल चिकित्सा इकाई और केंद्रीय पुस्तकालय, एक IT और स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर और 500 सीटों वाला ऑडिटोरियम भी शामिल है. इसके अलावा वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, पश्चिम बंगाल के कल्याणी, बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, असम के गुवाहाटी और नई दिल्ली में भी विभिन्न एम्स में सुविधा और सेवा विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे, जिनमें एक जन औषधि केंद्र भी होगा. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और ओडिशा के बरगढ़ में एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी वो उद्घाटन करेंगे. ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो बिल्डिंग है, ये इस प्रदर्शनी में ये दर्शा रहा है किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं आम लोगों तक मुहैया हों, उस दिशा में ये प्रदर्शनी अपने आप में ख़ास है. और प्रधानमंत्री इस समय इसका अवलोकन कर रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, जिसमें ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं. प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के शिवपुरी, रतलाम, खंडवा, राजगढ़ और मंदसौर में भी जो 5 नर्सिंग कॉलेजों और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरचना मिशन के अंतर्गत
हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, तमिलनाडु और राजस्थान में 21 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों और नई दिल्ली स्थित एम्स और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भी अनेक सुविधाओं का और सेवाओं की विस्तारों की जो है आधारशिला रखेंगे। ये आप तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देखते हुए। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के चरण 2 का उद्घाटन होगा। दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, और ये तस्वीरें आपके सामने 12,850 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा होगा। तमाम स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं, वो उनकी सौगात आमजन को मिलने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा एक कोशिश कि आम जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सकें, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सकें। और बीते कुछ वर्षों में, बीते दशक में हमने देखा है जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, आम जन तक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई गई हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अथक कोशिशों का परिणाम ही है कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी तमाम परियोजनाएं लाई गई हैं और आम जन तक किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सकें, उसके लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में स्वास्थ्य सेवा का एक इकोसिस्टम और ज़्यादा बेहतर बन सके, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, अनुसंधान एवं विकास पर जोर दे रहे हैं और किस तरह से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके, उस पर लगातार जोर देते रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि आज देश में जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, आम जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच पा रही हैं, उनकी पहुंच मुहैया हो रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों का ही परिणाम है। आज धनतेरस के दिन तमाम देशवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं की एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, जो कि स्वास्थ्य की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि स्वास्थ्य सेवा का इकोसिस्टम और ज़्यादा बेहतर हो सके, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिले और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इसीलिए प्रधानमंत्री कई पहलों की शुरुआत कर रहे हैं। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का उद्घाटन होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में ये प्रदर्शनी और उसका अवलोकन करते हुए, समझते हुए कि किस प्रकार से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाया जा रहा है। और ये प्रधानमंत्री के विजन का ही नतीजा है, प्रधानमंत्री की कोशिशों का नतीजा है कि वो आम जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना चाहते हैं और उसके लिए तकनीकी समाधान, आयुष उत्कृष्टता केंद्र, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और आयुर्वेद में मौलिक और अनुवाद संबंधी अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र, तमाम सारे वो जो प्रयास हैं वो लगातार प्रधानमंत्री की कोशिशें हैं कि स्वास्थ्य की दिशा में भारत में कोई भी व्यक्ति पैसे की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित ना रह पाए, इस दिशा में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया के पहल को भी लगातार बढ़ावा देते रहे हैं और उसके लिए गुजरात के वापी, तेलंगाना के हैदराबाद, कर्नाटक के बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में चिकित्सा उपकरणों और बल्क दवाओं के लिए उत्पादन से जुड़ी
प्रोत्साहन योजना के तहत आज वो 5 परियोजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले हैं। ये इकाइयाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि बड़ी मात्रा में दवाओं के साथ साथ बॉडी इम्प्लांट और क्रिटिकल केयर उपकरण जैसे उच्च स्तरीय जो चिकित्सा उपकरण हैं उनका निर्माण करेंगे। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हर एक क्षेत्र में मेक इन इंडिया की पहल को बढ़ावा देते रहे हैं, ताकि देश और ज़्यादा मजबूत बने और हर हाथ को रोजगार भी मिले। और उस दिशा में अब स्वास्थ्य के क्षेत्र की दिशा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि मेक इन इंडिया की पहल को बढ़ावा मिले और तमाम उपकरण, तमाम दवाएं देश में निर्मित हों और बेहतर स्वास्थ्य, सस्ता स्वास्थ्य उपलब्ध हो सके। इसी के साथ साथ प्रकृति से एक प्रधानमंत्री का जिस प्रकार का जुड़ाव रहा है, प्रकृति किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में सहायक हो सकती है, उस अपनी प्रकृति, अपनी विरासत, अपनी परंपरा